Hello everybody. Hi dear students. I hope you guys are doing good and preparing for your exams with full vigor and vitality. I welcome you all on this amazing platform of PW CLAT in lecture number 2, where today we are looking forward to seeing what reading comprehension is in Achievers and Pro 2027 batch. Let's get started. But before that, quickly tell me in the comment section if I am perfectly audible and visible. अगर आपको कोई discrepancy लग रही है, please report that so that we can sort it out and get the lecture started. Okay, I'm doing good. Thank you for asking. All right. Before I kickstart the session, everybody, I actually wanted to talk to you people regarding something important. Okay. A few days back, a picture of a penguin walking towards the mountains got viral, right? And then a lot of people have been putting their own theories onto it. I hope you people have seen that particular picture of the penguin walking towards the mountain. Are you people aware of that? Yes, you people have seen that. Okay. So that picture is actually taken from a documentary. ठीक है, जो जिसमें देखा गया कि penguins are walking in a colony and then all of sudden there's a penguin that started walking towards the mountains and it got circulated. Though this documentary is from 2007, I think, right? But then people started saying a lot of different things. They started actually using it as a metaphor for loneliness, leaving the rat race behind and moving ahead, right? There are multiple theories, but the reality is, when it was asked to the biologist, a lot of them said that penguins actually get a little disoriented, okay, where they do not understand what they should do next and they start behaving abruptly. Now, it is important for all of us to understand that penguins do not follow any particular philosophy, okay? They do not act out of that particularly. So, my dear bacha parties, now people started calling this penguin nihilist penguin, right? Nihilism is a theory that says that some people believe that life has no purpose, life has no meaning, so they should alienate themselves and move towards death. Okay? So, my dear bacha party, please do not relate to that penguin in this particular trend where everybody is calling himself or herself that penguin that is going to alienate the world and move towards destruction. It is very, very important for everybody over here in my class to understand that you people have a purpose. Okay? And if any day you feel purposeless and you start alienating yourself out of pressure and this particular trend going on our social media, then remember your parents, teachers and friends are here. Come running to us, we'll hug you tighter and we'll make you understand that everybody is born with a purpose and you should achieve that particularly and you should strive for betterment, excellence every day. Okay? Am I clear so far? Have you people understood this? समझ में आया? चलिए, now I'm going to get started. आज का जो सेशन है, यहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं.
सबसे पहले तो हम एक पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज आती है वहां पर पीवाईक्यू एनालिसिस, जहां पर आप ये देखते हैं कि पिछले 4 से 5 साल में किस किस तरीके के पैसेजेस आए हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आप वही इनकॉर्पोरेट कर सके अपनी रीडिंग हैबिट में और उसी तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके। उसके बाद हम लोग देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या, फिर हम एक एनालिसिस करेंगे क्लैट और एलेट का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी एनएलयू दिल्ली जाना चाहते हैं, राइट। उसके बाद फिर हम सीखेंगे आरसी को सॉल्व कैसे करना है और फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले आप एनालिसिस देखिए। अगर मैं बात करूं क्लैट 2026 की, जो पेपर अभी दिसंबर में हुआ है, राइट। बच्चा पार्टी, यहां पर आपके पास पैटर्न में देयर वर सम चेंजेस, दो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाजंट रिड्यूस, वो सेम था, बट जो कॉन्फ़िगरेशन था पेपर का वो चेंज हो गया है। आपके पास 24 क्वेश्चंस हैं इन टोटल, जहां पर आपके पास 4 पैसेजेस से 20 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मतलब यहां पर आप लोगों के पास एक पैसेज से 5 क्वेश्चन है और आपके पास एक पैसेज था जिससे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। अगर मैं पेपर के बारे में बात करूं तो बच्चा पार्टी इजी टू मॉडरेट था, आपका गुड अटेम्प्ट 20 से 22 है और आप 22 से ज्यादा स्कोर कर सकते थे, ठीक है। अब बच्चा पार्टी, लेट्स हैव अ लुक एट द टाइप्स ऑफ पैसेजेस दैट यू पीपल हैड। पहला नॉन फिक्शन उठाया गया है, कहां से? हिस्ट्री से, राइट। और हिस्ट्री का कौन सा पैसेज है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड, जो बिपिन चंद्र की बुक से उठाया गया है। दिस पैसेज वाज कवर्ड इन द क्लासेस। नेक्स्ट पैसेज 2 आया है नॉन फिक्शन। आई वॉन्ट यू टू लुक एट इट सोर्स। व्हाट इज द सोर्स? द सोर्स इज सेपियंस, a brief history of humankind, the same book that I told you people in the last class to read, right? Next, नॉन फिक्शन का एक और फ्रीडम से रिलेटेड, ये कहां से है? द ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर बाय फ्रांसिस फुकुयामा। नेक्स्ट पैसेज 4, ये फिक्शन है रविंद्रनाथ टैगोर की स्टोरी से। मैंने आपको बोला था इंडियन ऑथर्स कवर करने हैं, राइट। यहां पर आपसे अगेन इंडियन ऑथर से पैसेज है। नेक्स्ट कंसोर्शियम का फेवरेट राइटर जॉर्ज ऑरवेल, उसका एनिमल फार्म से आपके पास आया है। बच्चा पार्टी, इसका सेम पैसेज हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, डीपीपीज में भी दिया गया है, बच्चों को मॉक टेस्ट में भी इंक्लूड किया गया था, राइट। सो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये सोर्सेज हैं जो यहां पर आए हैं, ये प्रोबेबल सोर्सेज हैं, ये कवर किए जा सकते हैं, राइट। सो वी कैन डिकोड द पैटर्न एक्चुअली, ओके। आई होप समझ में आया ये सबको। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। पहले पैसेज से, विच वाज अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टेकन फ्रॉम बिपिन चंद्र, इन्फ्रेंस का क्वेश्चन, वोकैबुलरी का क्वेश्चन, फिर इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, वोकैबुलरी। सेकेंड पैसेज जो आया है होमोसेपियन से, इन्फ्रेंस का क्वेश्चन, वोकैबुलरी का और 3 क्वेश्चन इन्फ्रेंस के। अगला पैसेज जो आपसे पूछा गया है, द आइडिया ऑफ फ्रीडम, पॉलिटिकल है, यहां पर इन्फ्रेंस, वोकैबुलरी और 2 रिट्रीवल बेस्ड डिटेल ओरिएंटेड। नेक्स्ट इंडियन ऑथर से थीम का क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन ने यहां पर कम बैक किया है क्योंकि 24-25 में नहीं आए थे। वोकैबुलरी, इन्फ्रेंस। आखिरी पैसेज जहां पर जॉर्ज ऑरवेल पढ़ा, वहां पर टोन का क्वेश्चन देखो, फिगर ऑफ स्पीच का एक और क्वेश्चन, वोकैबुलरी और इम्प्लाइड आइडिया। सो यहां से आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू पीपल हैव टू प्रैक्टिस इन ऑर्डर to improve your score in the English section. I hope ये समझे सब।
यहां तक सबको क्लियर है? इफ देयर इज एनी डाउट सो फार प्लीज आस्क. क्लियर है बच्चा पार्टी? ये नेक्स्ट देखो, क्लैट 2025. यहां पर आपके पास क्वेश्चन वही 24. यहां पर पैटर्न अलग था. यहां पर आपके पास 4 पैसेज थे. इन 4 पैसेज से 24 क्वेश्चन थे. यहां पर आपके पास एक पैसेज से 6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. ठीक है, यहां पर भी पेपर का पैटर्न इजी है. आपका गुड अटेम्प्ट 22 से 24 रहेगा और आप 22 से ज्यादा नंबर ला पाएंगे. ठीक है बच्चा पार्टी, यहां पर एक बच्चा बोल रहा है मैम इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? आप इन्फ्रेंस का मतलब समझो. इन्फ्रेंस का मतलब होता है इनडायरेक्टली समझना कोई भी चीज. मतलब कोई भी चीज जो आपके साथ एक्सप्लिसिटली गिवन नहीं है बट आप इम्प्लिसिटली डिराइव करते हैं. एग्जाम्पल, आपको कहीं घूमने के लिए जाना है तो यूजुअली लोग मॉर्निंग में निकलते हैं, दिल्ली से कहीं भी बाहर जाते हैं क्योंकि उनको पता है दिन में ट्रैफिक होगा. क्या ये चीज कहीं पर लिखी हुई है कि दिन में ट्रैफिक होगा? नहीं. इस चीज के एविडेंस है ना? ये चीज देखी गई है, एक्सपीरियंस की गई है. नेक्स्ट, अगर बच्चा पार्टी यहां पर मेरी गोदी में एक बेबी है और उसमें बेबी का ध्यान रख रही हूं, आई एम कैरेसिंग द चाइल्ड, किसिंग दैट बेबी, तो आपको क्या लगेगा? शायद आई एम द मदर ऑफ दैट चाइल्ड, राइट? या फिर अगर आपको कोई टीचर यहाँ पर पढ़ाने आए, उसने रेड कलर का सूट पहना है, हाथ में चूड़ा पहना हुआ है, गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है, तो आपको क्या लगेगा? मैरिड है, राइट? तो इन्फ्रेंस का मतलब होता है समथिंग दैट यू इम्प्लिसिटली अंडरस्टैंड, something that you derive indirectly through the evidence, through the resources that are particularly present. समझ में आया? अगर कोई चीज डायरेक्टली गिवन होगी बेटा वो कंक्लूजन होगा. ठीक है, अगर आप इनडायरेक्टली उसको निकालेंगे तो वो इन्फ्रेंस होगा. समझ में आया? क्लियर हुआ? रिट्रीवल का मतलब होता है बेटा डिटेल ओरिएंटेड. जैसे मैं बोलूं आपको कि एक लाइन है, ये बोल रही है इंडिया का मतलब जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है. क्वेश्चन आ गया कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है? 2 4 6 8. तो आप क्लियर कट 2 पर जवाब देंगे तो इसको बोलते हैं रिट्रीवल, डिटेल ओरिएंटेड. कि आपने पैसेज रीड करा, डिटेल पढ़ी और डिटेल को यहां पर आकर आंसर कर दिया, राइट? समझ में आया बच्चा पार्टी? ये सब आपको क्लासेस में कराया जाएगा, सब, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड. क्लियर हुआ ये? नहीं, इन्फ्रेंस और अजम्पशन दोनों अलग चीज है. अजम्पशन का मतलब तो होता है टेकन फॉर ग्रांटेड. यू डू नॉट हैव एनी रिसोर्सेज, यू डू नॉट हैव एनी प्रूफ, एनी एविडेंस ओवर हियर. जैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है, जो एज्यूम करके चल रहे हैं क्लैट 2027 इजी आएगा क्योंकि 2026 का पेपर इजी था. कोई प्रूफ है? आपने पेपर देखा है? नो ना? So assuming is this, when you take something for granted without any evidence. समझ में आया? I hope this is clear to everybody. Bacha party, is this clear to all? Now let's decode 2025 का पेपर. I told you कंसोर्शियम का फेवरेट है जॉर्ज ऑरविल. यहां पर जॉर्ज ऑरविल का Why I Write से एक एक्सर्प्ट है. नेक्स्ट, यहां पर आपके पास इन्फ्लुएंशियल एसेज और स्पीचेस देखी गई थी इस पर्टिकुलर पेपर में.
जितने भी एक्सर्प्ट हैं ये मोस्टली इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस, इन्फ्लुएंशियल एसे से उठाए गए हैं। जैसे व्हाई आई राइट एक इन्फ्लुएंशियल एसे है जॉर्ज ऑरवेल का। नेक्स्ट, एजुकेशन बाय स्वामी विवेकानंद, दिस इज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंशियल एसे बाय विवेकानंद जी। नेक्स्ट इज एन एस्ट्रोलॉजर डे आर के नारायण। आई टोल्ड यू पीपल इंडियन ऑथर जरूर आएगा, यहां पर फिक्शन में इंडियन ऑथर से दिया गया है। नेक्स्ट, एक और इन्फ्लुएंशियल एसे अबाउट एजुकेशन जो कृष्णमूर्ति का है, द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन बाय जे कृष्णमूर्ति। ओके बच्चा पार्टी, नाउ यू नीड टू सी ओवर हेयर कि इस पर्टिकुलर पेपर में क्लैट 2025 में देखने को मिला है डोमिनेंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल एसेज, वेयर यू हैव जॉर्ज ऑरवेल्स व्हाई आई राइट, फेवरेट है ये तो उनका, स्वामी विवेकानंद जी का एजुकेशन, आर के नारायण का एस्ट्रोलॉजर डे, कृष्णमूर्ति का द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। यहां पर सब में द थीम ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट और प्रेवलेंट भी है। आई होप ये क्लियर है सबको। यहां पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग बताइए। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? क्लियर है बेटा? अब देखो, पहला क्वेश्चन यहां से रिट्रीवल, दूसरा क्वेश्चन भी रिट्रीवल, आगे देखो फिर एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन, फिर 3 रिट्रीवल के क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड पैसेज से रिट्रीवल के क्वेश्चन हैं दोनों, और उसके बाद आपके पास वोकैबुलरी का और फिर रिट्रीवल का। नेक्स्ट पैसेज 3 आर के नारायण वाला, वोकैबुलरी रिट्रीवल, रिट्रीवल वोकैबुलरी रिट्रीवल। नेक्स्ट पैसेज 4 दोनों रिट्रीवल, वोकैबुलरी, इंटेंशन ऑफ द ऑथर, रिट्रीवल। यहां पर देयर वाज द डोमिनेंस ऑफ रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस मोर। ओके, रिट्रीवल इज डिटेल ओरिएंटेड शिफा। आई जस्ट टोल्ड यू पीपल व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन जो डायरेक्टली डिटेल से हो, जैसे मैं आप सुन लो बेटे, बता रही हूं क्या होता है डिटेल। देखो यहां पर रिट्रीवल होता है रिट्रीव करके लेकर आना, मतलब यहां से डिटेल उठाई और यहां आंसर में आके रख दी, दिस इज कॉल्ड रिट्रीविंग। गोल्डन रिट्रीवर्स देखे हैं, उनको क्यों बोला जाता है गोल्डन रिट्रीवर्स? क्योंकि आप बॉल फेंकते हो वो आपको उठाकर लाकर देते हैं, दे रिट्रीव द बॉल टुवर्ड्स यू। तो रिट्रीवल मतलब डिटेल का क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? डिटेल का। आपको यहां पर क्या करना है, पैसेज रीड करना है, पैसेज के अंदर डिटेल्स होंगी, डायरेक्टली क्वेश्चन में आंसर कर दो। एग्जाम्पल देती हूं, अगर एक स्टेटमेंट है दैट अर्थ्स टेम्परेचर हैज राइजन बाय 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो क्वेश्चन होगा कितना डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ गया है? 2, 4, 6, 8, 10। आप जवाब दोगे 2। दिस इज कॉल्ड रिट्रीवल, डिटेल ओरिएंटेड। आपने डिटेल पढ़ी, उसको लाकर आंसर में रख दिया। आई होप समझ में आया सबको। क्लियर हुआ? मिस पर्पल, आई गेव यू एन एग्जाम्पल बेटा, इज इट क्लियर नाउ? समझ में आया है ये सबको? रिट्रीवल मीनिंग मैम, इन्फ्रेंस आई जस्ट टोल्ड, रिट्रीवल आई जस्ट टोल्ड। डैशबोर्ड से कोई टेस्ट नहीं है मैम, आ जाएगा। क्या न्यूज से भी पैसेज आ सकता है? आ सकता है रूही। मैम इंग्लिश ग्रामर कैसे स्ट्रॉन्ग करें? बेटा आप ओरिएंटेशन लेक्चर देखो। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो अयान, नॉन फिक्शन और फिक्शन एसेज पैसेजेस आपको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट में मिल जाएंगे। प्लीज डू नॉट गेट वरीड। इंटेंशन ऑफ द ऑथर मीन्स द पर्पस ऑफ राइटिंग द पैसेज। ओके बेटे, क्लियर साइना? Aryan, I've explained it. Intention of the author talks about the purpose. Why is your author writing it?
क्लियर है? अगला देखो, नेक्स्ट आता है 2024 का पेपर। यहां पर बच्चा पार्टी, नहीं बेटे विशाखा आज नोट्स मत बनाओ, आज बैठकर सिर्फ सुनो। मिनाज वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जो ये वर्ड यहां पर यूज किया गया है इसका क्या पर्टिकुलर मीनिंग है एज पर द पैसेज। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, हमें देखना है किस तरीके से वो यूज किया गया है। जैसे द वर्ड बैंक, BAN की, बैंक का मतलब क्या है? BANK, नॉट ई। इसका देखो, मैं बोलूं आई हैव एन अकाउंट एट दिस बैंक, मतलब इस बैंक में मेरा खाता है। यहां पर बैंक हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर मैं बोलूं आई सैट नियर द बैंक एंड एंजॉयड द ब्यूटी, नाउ ये वाला बैंक हुआ रिवर बैंक। समझ में आया? क्लियर हुआ बेटा? बच्चा नॉन फिक्शन होता है रियलिटी बेस्ड, फिक्शन होता है इमेजिनेशन बेस्ड। ठीक है राफिका? हैप्पी, आई विल टेल यू बेटा, अभी नहीं, अभी सिर्फ सुनो आप लोग। आपको एनोटेटेड, देखो आपको क्या करना है, आपको ना एनोटेटेड PDF मिल जाएगी, आप उससे पढ़ लेना, ठीक है? What's the difference between main idea and intention of the author? Main idea is the central message that your passage is telling you. Intention of the author is why is the author writing this? क्यों लिख रहे हैं आपके ऑथर, क्या ऑब्जेक्टिव है लिखने का, वो आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, परसुएड करना चाहते हैं। मेन आइडिया है, सेंट्रल मैसेज, आपको सब पढ़ा दिया जाएगा ये, आप टेंशन मत लो बेटे। ओहो, नोट्स बनाने हैं, आपकी मर्जी है बच्चे, अभी आप एनोटेटेड से भी पढ़ सकते हो। मैम मेरा दूसरा ईयर ड्रॉप है, ऑल राइट मनीष, ऑल द बेस्ट। नोट्स का आई हैव टोल्ड यू पीपल ऑलरेडी, राइट? मॉक टेस्ट डैशबोर्ड में नहीं है, मनीषा आ जाएंगे, गिव इट सम डेज। मैम जो भी बुक्स खरीदनी है और इंपॉर्टेंट है प्लीज उसका लिस्ट बता दीजिए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अरीफा दैट। मैम द काइट रनर पढ़ना शुरू किया है, डेली 20 पेजेस पढ़ता हूं। वेरी गुड आयुष, गुड वन। Can we read English version of holy books? You can. मैम PW मॉड्यूल्स काफी नहीं है क्या इंग्लिश के लिए? बच्चा पार्टी PW मॉड्यूल्स काफी है, but you need to engage with a variety of text so that you can bring the familiarity thing. Okay? मैम इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? I've already discussed this earlier ना in the first lecture. मैम क्लैट की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बता दो फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। बच्चे ये देखो, मैं इंग्लिश की आपको बता पाऊंगी, बाकी सब्जेक्ट्स की आपको बाकी टीचर्स पढ़ाएंगे। मैम प्लीज थोड़ा हिंदी में बता दीजिए। ठीक है बेटे प्राची, डन। मैम नोट्स कैसे बनाए और इंग्लिश को कैसे समझे बताएंगे। मैम मॉक तो अभी नहीं मिले करने के लिए, बच्चे मिल जाएंगे तन्वी सुपर सून। मैम इंग्लिश की डेली स्टडी कैसे करनी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैम प्लीज बताएं। अक्सा बेटा मैंने ना फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों से यही डिस्कस किया था, आप प्लीज एक बार ओरिएंटेशन लेक्चर देखो, ठीक है? मैम अभी 10th से 12th PCM के फाइनल एग्जाम्स हैं और अभी रोज टेस्ट चले हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा बैकलॉग क्रिएट हो गया है। हर्ष आई कैन अंडरस्टैंड, जो बैकलॉग है ना उसको कवर करने की कोशिश करो। बैकलॉग दो तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट बैकलॉग होते हैं जिसके बिना आप आगे सिलेबस नहीं कर पाएंगे। इंडिपेंडेंट बैकलॉग है प्रैक्टिस सेशंस, जो अगर आपने वो करे ना करे उससे आगे का इंपैक्ट नहीं होगा। पहले डिपेंडेंट करो फिर इंडिपेंडेंट पे आना, ठीक है? मैम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पैसेज क्लियर नहीं समझ में आता। नंद विल डील विद दिस। मैंने आप लोगों को ना एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई थी, इफ यू पीपल रिमेंबर। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आप अभी न्यूज़पेपर से स्टार्ट मत करिए, अभी आप उठाइए RK नारायण की बुक। कौन से वाली? स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है? अभी के लिए आप स्वामी एंड फ्रेंड्स या फिर मालगुडी डेज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? आप जैसे जैसे ये बुक कवर करेंगे वैसे वैसे आपकी रीडिंग हैबिट भी बन जाएगी, और इस बुक की लैंग्वेज बहुत इजी है, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। जब आप इस बुक को कंप्लीट कर लें, व्हेन यू फिनिश रीडिंग दिस, उसके बाद आप लोग न्यूज़पेपर उठाना।
क्योंकि इससे आपकी एक रीडिंग हैबिट बन जाएगी। उसके बाद यू पीपल पिक अप अ न्यूज़पेपर। अगर आपसे पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप 4 आर्टिकल्स पढ़ो। कहां से पढ़ो वो 4 आर्टिकल्स? एडिटोरियल या एक्सप्लेन्ड सेक्शन से। इसके अलावा आपको एक पॉकेट डायरी खरीदनी है। उस पॉकेट डायरी के अंदर आपको अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड मिलता है वो वर्ड लिखना है। नेक्स्ट एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, ये बुक है नॉर्मन ल्यूइस की। ये बुक मैंने आपके वाईटी पे आपको कराई हुई है, ठीक है। मेक श्योर आप ये बुक कवर करें, ठीक है। आप वाईटी पर भी लेक्चर्स देख सकते हैं, उसके बाद बुक सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर 47 सेशन इन दिस, ओके। इसके अलावा न्यूज़पेपर के साथ साथ आप इयॉन एसेज पढ़ सकते हैं, ठीक है। इयॉन एसेज के अलावा आई हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ बुक्स। वो लिस्ट किस किस की है? फिक्शन की भी है, नॉन फिक्शन की भी है। आपको जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लगे आप वो रीड करना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा मैंने आपको इन्फ्लुएंशियल एसेज की लिस्ट दी है, आप उसको गूगल करो और आप उन इन्फ्लुएंशियल एसेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये आपकी रीडिंग लिस्ट होनी चाहिए। आई होप अब समझ में आ गया है सबके। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग बताइए। क्लियर है सबको ये? मिस पर्पल आप बेटा जा करना गूगल पे लिखो इयॉन एसेज, अपने आप एसेज खुल जाएंगे, आप वहां पर रीड करना स्टार्ट करो, ठीक है। एक बार और डाउट्स देख लेती हूं मैं। मैम प्रेमिसेस इन्फ्रेंस, अंशु ये आपको बेटे अभी पढ़ाया जाएगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी छोड़ दो इसको। मैम न्यूज़पेपर रीड करे के बाद समझ नहीं आता क्या करना है। हाउ आई इम्प्रूव माई इंग्लिश? तन्वी दिस इज द स्ट्रैटेजी। मैम माई इंग्लिश इज नॉट गुड, हाउ टू इम्प्रूव? Refer to lecture number 1, how to do well in CLAT 2027. Focus on building a good reading habit, cover the syllabus on time, and then practice as many questions as you can. Give sectional test, mock test, analyze, rectify your mistake. मैम vocabulary के लिए word par made easy book पढ़ सकते हैं। हाँ जी सिमरन, मैंने यही बताया है। मैम 3 ईयर ड्रॉप है। All right, I hope you do well in this upcoming attempt. मैम हिंदी मीडियम का हूँ, सेकेंड ड्रॉप है, इंग्लिश के वजह से नहीं हो पाया मैम, हेल्प। आदर्श प्लीज फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। मैम प्लीज अरेंज अ वोकैबुलरी क्लास। सपना सब कुछ होगा, वोकैबुलरी की भी क्लासेस होंगी, ग्रामर की भी होंगी। मैम एक बुक सजेस्ट करिए जिसमें पैसेज प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लैट के लिए। पीडब्ल्यू क्लैट के मॉड्यूल्स हैं बेटे, वो ले लो। मैम हमारे सिटी में हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर आता है, वेरी गुड, आप वो रेफर कर लो। अदरवाइज आप ऑनलाइन ग्रुप्स में एनरोल हो जाओ जहां पर न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर आता है। मैम आप इतना सारा बुक बताते हो, उतना सारा एक साथ कैसे पढ़े? उतना सारा एक साथ पढ़ना भी नहीं है आयुष, एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। आई होप समझ में आया है ये सबके। चलो अब एक बार वापस जाते हैं 2024 का पेपर। बेटा यहां पर आपके पास पैटर्न चेंज हुआ था। इससे पहले 150 क्वेश्चन आते थे। क्लैट 2024 में 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। यहां पर पैटर्न चेंज हुआ है। इंग्लिश में पहले 30 क्वेश्चन आते थे, 24 आने लग गए हैं। 4 पैसेजेस से 24 क्वेश्चन, मतलब एक पैसेज से 6। बहुत इजी पेपर था, एंटीसिपेटेड था। अब यहां पर पैसेज 1 देखो, यहां पर लिटरेचर का डोमिनेंस था। पैसेज 1 आया है लिटरेचर से, एनालिसिस किस चीज का? कैरेक्टर का और सेटिंग का। और फिर यहां पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं। आई होप ये समझ में आया है सबको। अब नेक्स्ट आइडिया ऑफ जस्टिस, ये फ्रंट लाइन से लिया हुआ है। नेक्स्ट अनीता देसाई, अगेन यू कैन सी एंड इंडियन ऑथर। नेक्स्ट लिटरेचर एनालिसिस है जहां पर डिफरेंट पीरियड्स के बारे में बताया गया है। यहां पर क्वेश्चन, इन्फ्रेंस और रिट्रीवल है। रिट्रीवल के क्वेश्चंस हैं, आगे देखो। रिट्रीवल का क्वेश्चन कैरेक्टर सेटिंग से, एक वोकैबुलरी का, फिर एक क्वेश्चन है मेन थीम का। नेक्स्ट देखो
पैसेज 2 से सेंट्रल थीसिस क्या है, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का, रिट्रीवल का। यहां पर आपके पास क्वेश्चन है स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के। ये एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग के कंसेप्ट हैं, बट यहां पर आपसे ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, राइट। नेक्स्ट रिट्रीवल का। इसके बाद आपके पास अनीता देसाई से रिट्रीवल के 2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर रिट्रीवल का क्वेश्चन, फिर वोकैबुलरी का, फिर रिट्रीवल का। फिर पैसेज 4 में 2 रिट्रीवल के क्वेश्चन, बाकी सब भी रिट्रीवल के क्वेश्चन। आई होप ये तीनों पैटर्न समझ में आ गए हैं। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप लोग बताइए। I hope the patterns are clear, everybody. You have understood what are the types of passages that are being asked in your English section in CLAT 2024, 25 and 26. I hope you have understood what should be your sources for reading. समझ में आया इतना? क्लियर हुआ? अब बात करते हैं क्लैट 2023। यहां पर 150 क्वेश्चंस आते थे, जहां पर इंग्लिश सेक्शन में 30 क्वेश्चंस थे। बच्चा पार्टी यहां पर आपके पास 6 पैसेजेस से 30 क्वेश्चंस, जहां पर एक पैसेज से 5 क्वेश्चन। दिस वाज हाउ इट इज। ये लेवल मॉडरेट था, यहां पर एक्सटेंसिव रीडिंग की जरूरत है, एंड यू विल सी दैट थ्रू द सोर्सेज। पहला पैसेज देखो, नॉन फिक्शन प्रोविंशियल रीडर। प्रोविंशियल रीडर कौन होता है? जो एक छोटी सी जगह प्रोविंस में रहता है, जहां पर स्टडी मटेरियल टाइम पर नहीं पहुंचता है, जिसके वजह से न्यूज लेजेंड बन जाती हैं, चीजें बहुत लेट पता चलती हैं। दैट इज प्रोविंशियल रीडर। नेक्स्ट द डिग, ये किलाड़ी साइट की, शायद इंडस से पहले किलाड़ी हो। नेक्स्ट इंटरनेट, सोशल मीडिया से रिलेटेड। नेक्स्ट वाटर माफिया, कैसे दिल्ली के अंदर वाटर माफिया पैरेलली रन कर रहा है। नेक्स्ट इंडियन स्निग्धा पूनम का हाउ यंग इंडियंस आर चेंजिंग द वर्ल्ड। और फिर आपके पास इंडियन ऑथर सलमान रुश्दी का सी एंड स्टोरीज फिक्शन। आई होप द सोर्सेज आर क्लियर। नाउ आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू लुक एट क्वेश्चन। प्रोविंशियल रीडर से रिट्रीवल के क्वेश्चन, वोकैबुलरी के क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ सेंटेंस। सेकंड जो आपके पास पैसेज था, जहां पर किलाड़ी साइट के बारे में बात की गई है, वहां से अजम्पशन का, चैलेंजिंग का, कंक्लूजन का, रिट्रीवल का, इंप्लाइड आइडिया। नेक्स्ट इंटरनेट, इन्फ्रेंस का क्वेश्चन, वोकैब का क्वेश्चन, रिट्रीवल, फिगर ऑफ स्पीच, टाइप ऑफ पैसेज, मतलब किस तरीके का पैसेज है, क्या सोर्स है इसका। नेक्स्ट पैसेज 4 केस स्टडी, वाटर माफिया, इन्फ्रेंस, वोकैबुलरी, मेन आइडिया, रिट्रीवल, वोकैबुलरी। नेक्स्ट हाउ यंग इंडियंस ड्रीम, इन्फ्रेंस, वीकनिंग, रिट्रीवल, इन्फ्रेंस, वोकैबुलरी। लास्ट सलमान रुश्दी, रिट्रीवल, अप्लाइड आइडिया, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी। बच्चा पार्टी, आई कंसिडर CLAT 2023 one of the most difficult papers. यहां पर the reading was extensive, पहली। Next important thing that you people will see over here is the diversity. There is no single pattern seen over here. And this is what you all need to remember. And this can happen in the next exam as well. So it is very important for you to incorporate a variety of text so that you can read and build the familiarity index. Clear है इतना? हरदीप, आपको फिगर ऑफ स्पीच क्लासेस में करा दिए जाएंगे, प्लीज डू नॉट गेट वरीड। क्लियर है बच्चा पार्टी ये? एनी डाउट सो फार, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू पीपल हैव टू आस्क? क्लियर है ये? अप्लाइड आइडिया भी बच्चा आपको करा दिया जाएगा, डोंट वरी, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग राइट नाउ, जस्ट लुक एट द PYQs। ओके, किस तरीके के पैसेजेस थे, किस तरीके के क्वेश्चंस थे, बस इतना देखो। अभी बेटा यहां पर ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। I will make sure that we people are going to cover all these types of passages in the class, that we practice all these types of questions in the class. Okay? आपकी सिर्फ एक या दो इंग्लिश की क्लासेस नहीं है, बहुत सारी क्लासेस है।
आपकी क्लासेस के अंदर पूरा सिलेबस कवर कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Okay, and I'm also going to provide you people recorded lectures of grammar so that you can start from the scratch. ठीक है? Please do not be worried about all these things. Do not be in an anxious state where you think you do not know this. What if ये होगा, ये होगा? Don't worry at all. Abhi you are in the beginning stage. Okay? And I want my dear students to follow a particular technique so that you can excel not only English but the whole paper. Remember, if you get a good hold over the language, you are going to do well in all the different sections of the paper. And if you mess up here, you won't be able to do well in any other. Remember this. There is a warning also. I am cautioning you beforehand. If you people are not going to improve your English, you won't be able to do this paper well. Okay? समझ में आया है सबको? आस्था अभी तो बताया बेटे. रिट्रीवल का मतलब होता है डायरेक्ट डिटेल बेस्ड क्वेश्चन. जैसे आपको बोला गया है डायरेक्टली डिटेल रेफर करो, पैसेज से आंसर कर दो. सेंटेंस कह रहा है, एक और एग्जांपल सुन लो. सेंटेंस कहता है अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है, तो पूछा जाएगा कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 4 6 8. आप 2 का जवाब दो. दिस इज रिट्रीवल, डिटेल ओरिएंटेड. व्हाट इज सो डिफिकल्ट इन दिस टू अंडरस्टैंड? समझ में आया? अब क्लैट 2022 का भी पेपर देख लो भाई. वेरी डिफिकल्ट पेपर ऑनेस्टली. 12th के लेवल से डिफिकल्ट. 6 पैसेजेस, 30 क्वेश्चंस. लुक एट द टाइप्स ऑफ पैसेजेस. पहला, पब्लिक स्पीकिंग. क्या इंपॉर्टेंस है पब्लिक स्पीकिंग की? कैसे लीडर्स ने पब्लिक स्पीकिंग को यूज किया है अपने सब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए. नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ टेक्नोलॉजी. यहां पर एक छोटा बच्चा होता है जो अपनी बायोलॉजिकल मदर से दूर हो जाता है, तो वो कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है अपनी बायोलॉजिकल मदर को तक पहुंचने का. दैट इज देयर इन दिस. नेक्स्ट, पैसेज 3, सेफ्टी टेक्निक्स ड्यूरिंग कोविड, वॉशिंग हैंड्स, एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनैलिटीज अर्निंग फेम पोस्टह्यूमसली. यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है. कोविड में हम लोग हैंड वॉश बहुत ज्यादा कर रहे थे. किसी को पता है हैंड वॉशिंग किस साइंटिस्ट ने बताई थी? जो साइंटिस्ट था उसने नोटिस किया कि डिलीवरी के टाइम पर बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो मर रही हैं. क्या रीजन है इस चीज का? तो उन्होंने देखा कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेडिकल में जो डेड बॉडीज को ट्रीट कर रहे हैं और फिर सीधा आकर डिलीवरीज करा रही हैं. दे आर नॉट वॉशिंग देयर हैंड्स, बिकॉज ऑफ विच जो वो जर्म्स है डेड बॉडीज के, वो उनकी बॉडी को डिटीरियोरेट कर देते हैं, जिसके वजह से दे हैव ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड देन दे डाई. ओके, लेकिन लोगों ने समझा ये तो पागल है, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम अ ल्यूनेटिक और उसको एक पागल खाने में जाकर भर्ती कर दिया. एंड देयर ही डाइड. बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट व्हाट ही वाज टेलिंग वाज एक्चुअली राइट. और वहां से हमारे पास आया सेफ्टी टेक्निक्स. और ऐसा ही होता है यूजुअली, हम टाइम रहते हुए चीजों को एप्रिशिएट नहीं करते हैं, और जब तक बारी आती है एप्रिशिएट करने की तब तक शायद बहुत कुछ हो चुका होता है. राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एप्रिशिएट थिंग्स एट द राइट टाइम सो दैट वी कैन सेलिब्रेट इट विद द पीपल हु हैव गिवन इट. ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी. उस टाइम नया नया आया था तो उस पर एक. नेक्स्ट, पैसेज 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज. अगर आप लोग PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर इंक्लूडिंग दिस पेपर. ओके, क्योंकि इस पेपर में जो पैसेजेस है वो इतने माइंड टर्निंग है, इतने ज्यादा इमर्सिव एजुकेशनल पैसेजेस हैं दैट इट विल गिव यू इनसाइट्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. If you people look at the geopolitics, I hope you people are interested in reading about the international world order and geopolitics. Who all are interested? Give me a thumbs up quickly. कौन कौन बच्चा इंटरेस्टेड है इस चीज के बारे में पढ़ने में? Okay. So dear students, जियोपॉलिटिक्स के अंदर
व्हाट इज दैट वन फैक्टर जो एक्चुअली रिलेशंस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करता है समझने में? Whoever controls the trade controls the geopolitical order. We know this. Now when we talk about trade, what is the most important thing right now? Oil, resources, right? So it is actually the distribution of oil resources which is an important factor to determine the changing geopolitical order. Okay, and this is why we have seen how US is always involved with a country that has the maximum number of oil resources. You have seen the example of Venezuela recently. इससे पहले मिडिल ईस्ट में ऐसे यूएस के कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि यूएस की डिफेंस फोर्सेस है वहां पर? इट इज द ऑयल. ओके, मिनरल्स, ऑयल्स. यस, all right, this you'll see in passage 5. Next you people had passage 6 where the author is talking about animals rights. I hope the passages are clear. जो 6 passages आए हैं. Next, where's the pen? अब look at the questions. मेन आइडिया का क्वेश्चन, टोन क्या थी सरेंडर स्पीच की, इन्फ्रेंस का, वोकैबुलरी का, फिगर ऑफ स्पीच. सेकेंड पैसेज से रिट्रीवल, फिगर ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, टोन. थर्ड पैसेज से मेन आइडिया, रिट्रीवल, वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड मेंशन्ड, इन्फ्रेंस, वोकैबुलरी. पैसेज 4 एटीट्यूड, रिट्रीवल, फिगर ऑफ स्पीच, टाइप ऑफ पैसेज, रिट्रीवल. फिफ्थ सेंट्रल आइडिया, रिट्रीवल, इन्फ्रेंस, वोकैबुलरी, रिट्रीवल. Next, retrieval, vocabulary, retrieval, inference. So my dear students, this paper had a diversity of questions where you could see questions on everything and on every type, including main idea, tone, purpose, inference, implied idea, vocabulary, type of passage, fill in the blank, right? And we are going to make sure that we solve this paper, right? I hope ये clear है सबको, समझ में आया है यहां तक? बच्चा बाटी, आपको सब कुछ कराया जाएगा, सब कुछ. एटीट्यूड का मतलब है आपके ऑथर कैसा फील करते हैं इस टॉपिक के बारे में. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड फॉर श्योर. आई एम गिविंग इट टू यू पीपल इन रिटन. दिव्या, सरेंडर स्पीच ना उस पैसेज के अंदर मेंशन थी. अब एक बार मैं डाउट्स देख लेती हूं. फिगर ऑफ स्पीच का मतलब, फिगर ऑफ स्पीच मतलब रूही रिटोरिकल डिवाइसेस जैसे मेटाफर, सिमिली, एपिस्ट्रोफे, सिंप्लॉस, पर्सोनिफिकेशन, ये सब करा दिया जाएगा आपको, डोंट वरी. मैम इन्फ्रेंस, बेटे स्पेलिंग देखो क्या लिखी है. इन्फ्रेंस का मतलब होता है समथिंग दैट यू इनडायरेक्टली अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज. बेटा मेन थीम इज द मेन, ये भी कराया जाएगा आपको, डोंट वरी. सेक्शनल में अभी के लिए 20+ इज अ गुड स्कोर. मैम हार्ड पेपर हो सकता है तेजस, लेट्स सी. हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं अभी, बट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर बोथ द थिंग्स, फॉर इजी पेपर ऑल्सो, फॉर डिफिकल्ट पेपर ऑल्सो, सो दैट वी कैन परफॉर्म वेल इन द पेपर. मैम मॉक में टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, 2 आवर में सिर्फ एक ही सेक्शन हो पा रहा है अभी के लिए. इशिका टाइम लगेगा, बट विथ टाइम यू आर गोइंग टू इम्प्रूव. थैंक यू मैम, हमें लग रहा है कि हमसे नहीं होगा, मगर आपके साथ तो कुछ करने का जज्बा आ रहा है. ऑल राइट अरीफा मैम, आपके हाथ में क्या हुआ? आई स्लिप्ड इन द शावर. दिस इज माई फर्स्ट टाइम. कैन आई डू वेल? ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू डू वेल सिद्धि. आई टोल्ड यू पीपल, dedication, discipline, determination, these things will bring you closer to your goal, success, right? Just make sure you people are following everything that your teachers are telling you in the classes and you are doing your homework on time. Okay? Inference based question नहीं समझे ऋतुराज, इट्स ओके, डोंट वरी, आपको क्लासेस में समझा दिया जाएगा. मैम सिर्फ एडिटोरियल पढ़ने से नहीं होगा. निशांत देखो बेटा, यहां पर ना आपने सोर्सेज देखे, अलग अलग सोर्सेज है. अगर आप अपने आप को ना फेमिलियराइज करना चाहते हो इन सभी सोर्सेज से, तो यू नीड टू एंगेज योरसेल्फ विद दिस वैरायटी ऑफ टेक्स्ट.
ओके मैम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता दो. ओके स्ट्रैटेजी तो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, बाकी अभी भी करूंगी. मैम इट्स माय फर्स्ट टाइम, कैन आई डू? ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू डू वेल. मैम मैंने फ्री क्लासेस में भी एनरोल कर लिया है, ये सारे टॉपिक्स मैंने थोड़े उसमें समझे हैं. शुड आई लीव द फ्री क्लासेस? पूजा इट डिपेंड्स अपॉन यू बेटा कंप्लीटली. दिस इज गोइंग टू बी योर टेक नॉट माइन. मैम मॉक इज नॉट अवेलेबल. तेजस अब देखो बेटा, मॉक देने का फायदा तब होता है जब आप 40 to 50% सिलेबस कर लें, और मॉक्स भी अवेलेबल हो जाएंगे. प्लीज डू नॉट वरी ऑन दिस. ओके बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे, हर संडे मॉक टेस्ट होगा. मैम हमारे पास वर्ड पार मेड इजी है. हाउ टू रीड? आदर्श आई हैव रिकॉर्डेड 12, आई हैव टेकन 12 लेक्चर्स ओके ऑन दिस. आप लोग YT पर भी देख सकते हैं, बाकी क्लासेस में भी आपको कराया जाएगा. मैम फ्रॉम वेयर डू आई गेट मॉक्स? Priyanshi, you'll soon get mocks in the notice section. Mocks बेटा हम ही प्रोवाइड कराएंगे PW CLAT, बट अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद. मैम इट्स नेसेसरी टू रीड ऑल द बुक्स यू सजेस्ट. नॉट ऑल, बट यू कैन रीड एट लीस्ट 2 to 3. नंदिनी, दिस इज हैपनिंग टू एवरीबडी. पता है CLAT is not a very difficult exam, but the problem is distraction. Right now you people are so much distracted that you actually need to cut off all this so that you can focus and study well. Okay, please keep your distractions at bay, my dear bacha parties. Okay, you want to do well in, if you want to do well in the paper, you need to be focused, dedicated, determined and disciplined. ओके मैम करंट डेली पढ़ते जा रहे हैं, मॉक कैसे टॉपिक कवर होगा? हो जाएगा बेटा. मैम मेरा फर्स्ट ईयर है हिंदी मीडियम, क्या इस साल हो जाएगा? हो जाएगा साक्षी. जस्ट फॉलो द टिप्स दैट आई एम टेलिंग यू. मैम मॉक सबको ही दे सकता है जो ड्रॉपर नहीं है. हाँ बच्चे सब मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बट देखो मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ. मॉक टेस्ट देने का ना फायदा तब होने वाला है जब आपने 40 to 50% सिलेबस कर लिया है. अभी आपका सिलेबस तक नहीं हुआ है, अभी यू पीपल आर नॉट गोइंग टू डू वेल इन द पेपर इन दोज मॉक टेस्ट, और फिर आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे. इसीलिए हम लोग आपको अभी मॉक टेस्ट प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं. वी फर्स्ट वांट टू कंप्लीट एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ द सिलेबस, एंड इन मिड वे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू मॉक टेस्ट एज वेल. PW CLAT has taken responsibility of helping you people in this journey, and we will make sure that we leave no stones unturned to do so. Okay? Ma'am, how to manage 12th and CLAT 2027? Siddhi, I had discussed this in the previous lecture. Please watch that. Ma'am, I have recently completed a book. Now I am searching for a thrill. Can you... Sana, I have suggested these names in the first lecture. You can have a look. Yes, of course you are, bete. Chalo. I hope I am clear so far. Bacha party. Divya, the doubt section is actually working. I have taken a lot of doubts already. Okay, so please refresh once. समझ में आया? चलो. Now I am going to move ahead. Now talking about reading comprehension. Reading comprehension है क्या? Reading का मतलब होता है understanding the words. Comprehension का मतलब होता है applying the logic and interpreting everything. Okay. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आप लोग सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ेंगे, यहां पर आप किस तरीके से कॉम्प्लेक्स आइडियाज को डिकोड कर पाते हैं प्रेशर में, वो हेल्प करेगा. अभी आप स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होंगी ये करने में, बट विद टाइम when you will engage with a lot of text, when you will inculcate diversification in your reading, you will ace this easily. Okay? CLAT, ALET दोनों आपकी ये कोर स्किल्स चेक करते हैं. सबसे पहले आता है लैंग्वेज मास्टरी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वोकैबुलरी पर काम करें ताकि इंस्टेंट रिकॉग्निशन हो सके इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम. इंग्लिश सेक्शन में आपको 24 to 25 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. आपका पेपर 120 मिनट का है, 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, और इंग्लिश में माय डियर बच्चा पार्टी you need to take not more than 24 to 25 minutes. Okay? Ma'am, every time you say bacha party, I hear chiller party. Okay, I'm not going to call you bacha party now. I'll call you something else. Okay?
देखो यहां पर, यू पीपल नीड टू वर्क ऑन योर वोकैबलरी, वोकैबलरी के साथ साथ ग्रामर पर भी हेल्प करना, मतलब काम करना है, ताकि आप अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए किसी भी पैसेज के अंदर रीडर क्या कह रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब रीड करते हैं उनको कहीं कहीं मतलब समझ में नहीं आता है, राइट। कहीं कहीं क्या होता है, वो कुछ ऐसे वर्ड सेंटेंसेस पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां पर उनको समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करना चाहिए, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो भी पैसेज पढ़ रहे हैं उसको आप एक पर्टिकुलर पेस पर पढ़ें और आप साइड बाय साइड कॉम्प्रिहेंशन पर भी काम करें, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ने लगेंगे बिना समझे तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। बच्चे, यूजीसी की जो अभी नई गाइडलाइंस आई थी, जो ये लोग एक्चुअली इंप्लीमेंट करने वाले थे, उस पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। चलो, बाकी ये टॉपिक आपको कल, मतलब जो कल क्लास हुई थी उसमें मनु सर ने अच्छे से कवर करा दिया था हिंदू एडिटोरियल में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्किल आती है अब यहां पर स्मार्ट सर्चिंग। देखिए, पेपर आपका ओपन बुक टेस्ट ही है जहां पर आपके पास क्वेश्चंस भी हैं, पैसेजेस भी हैं। सो यू पीपल एक्चुअली नीड टू डेवलप सर्चिंग टेक्निक्स जिससे आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को लोकेट करके आंसर में उसे टिक मार्क कर सकें। नेक्स्ट, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर यू विल हैव टू इन्फर, इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई असम्पशन। आपको देखना पड़ेगा क्या बायसेस है, क्या फैक्ट्स है, क्या ओपिनियंस है। तो बच्चा पार्टी यहां पर कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं, जिसके वजह से दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टोन एंड पर्पस। हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, राइट। नेक्स्ट, अब आपके पैसेजेस आप देख चुके हो पीवाईक्यू एनालिसिस में डिफरेंट सोर्सेस के हैं, राइट। तो बहुत जरूरी है ये सारे सोर्सेस कवर करना। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि हम क्लासेस में ये सभी तरीके के पैसेजेस डिस्कस करें, सॉल्व करें, ताकि आप डाइवर्सिफिकेशन इनकॉर्पोरेट कर सके अपने प्रैक्टिस में। ओके, मूविंग अहेड, now comes stamina and focus. Your paper is particularly reading comprehension based, and a lot of students consider reading a sleeping pill because of which they are not able to read it carefully. Okay, पैसेज रीड करते करते ही नींद आ रही है, अगला सेक्शन कैसे हो पाएगा, 120 मिनट कैसे सस्टेन करोगे। इसीलिए आप मेक श्योर करिए कि आप डेली बेसिस पर 2 से 3 घंटे रीडिंग को दें, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स। ओके, आपकी रियल बैटल बोर्डम के अगेंस्ट है, फेटीग के अगेंस्ट है। एंड बच्चा पार्टी, एवरी डे यू विल हैव दिस अर्ज टू गिव अप, ठीक है। आपको लगेगा हाउ डल इज दिस थीम, व्हाई शुड आई कंटिन्यू इट, इट्स बेटर टू गिव अप, राइट। मूवी देख लेता हूं, डूम स्क्रोलिंग कर लेता हूं, मैगी खा लेता हूं, राइट, बाहर गेड़ियां मारने चला जाता हूं, बट दैट इज नॉट इट। Whenever you get distracted, stop there. Tell yourself that you need to read this. You need to focus. Why? Because students who are determined, disciplined and dedicated are not going to leave any stone unturned to achieve their goal of getting to the best NLUs. Okay? Next, accuracy under time pressure. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्रम्बल कर जाते हैं बिकॉज टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी रीड करने लग जाते हैं बिना समझने। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू पीपल नीड टू वर्क ऑन इज कॉम्प्रिहेंशन एज ऑफ नाउ। बाकी सारी चीजें अभी के लिए बेटा सेकेंडरी हैं। तो अभी के लिए आप फोकस करो ऑन अंडरस्टैंडिंग द पैसेज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। विद टाइम यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स एज वेल, राइट। बट अभी के लिए मेक श्योर दैट यू पीपल आर फोकसिंग ऑन कॉम्प्रिहेंडिंग व्हाट इज देयर इन द पैसेज। समझ में आया?
आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ आर टेंस्ड, क्योंकि उनको लग रहा है मेरा नहीं हो पाएगा, है ना, मैं 11th क्लास में हूँ। पता है बच्चे, मैं ना आपको एक थ्योरी बताती हूँ। वो थ्योरी है वाइल्ड फ्लावर नियर द वॉल। ठीक है, वाइल्ड फ्लावर नियर द वॉल मतलब आपने वो वॉल के साइड में छोटे छोटे फ्लावर्स देखे हैं जो कम सनलाइट में भी, है ना, और कम रिसोर्सेज में भी अच्छा करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी ऐसा ही फील हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एडवर्सिटी ब्रिंग्स द बेस्ट इन यू। ओके, वाइल्ड फ्लावर्स are not undernourished. Okay, remember this. You people are going to do well in the paper. Just believe in yourself, okay, and start your preparation in full josh. All right, very good. I'm reading Animal Farm. It's a good book. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ability to eliminate wrong options. इसके लिए I am going to teach you people grounds of elimination and you'll be easily able to do so. ठीक है, समझ में आया? अब एक बार हम लोग क्लैट और एलेट का पैटर्न देख लेते हैं। देखो, क्लैट के अंदर आपके पास 24 क्वेश्चन है, 5 पैसेजेस है। एलेट के अंदर आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं। क्लैट में 120 मिनट 120 मार्क, जो आप 120 मिनट 120 मार्क्स और 120 क्वेश्चंस। एलिट के अंदर 150 क्वेश्चन जो आपको 120 मिनट में करने हैं और 150 नंबर के हैं। नेगेटिव मार्किंग सेम है 1/4, बट इंग्लिश की वेटेज कितनी है 50। यहां पर आपके पास पैसेजेस भी है, ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है। क्लैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग, यहां पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्योंकि वोकैबुलरी के क्वेश्चन ज्यादा है, ग्रामर के क्वेश्चन भी है, राइट। यहां पर वोकैबुलरी सिर्फ कॉन्टेक्चुअल आती है, लेकिन यहां पर कॉन्टेक्चुअल और डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। यहां पर ग्रामर डायरेक्टली टेस्ट नहीं होती है, बट एलिट में पास्ट टेंस से रिलेटेड, पार्टिसिपल फ्रेज से रिलेटेड, कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, क्लैट में आरसी अगर आप अच्छे से कवर करेंगे तो शायद हो जाएगा। एलिट के अंदर एनालॉजी के क्वेश्चंस भी आ रही हैं। यहां पर द लेंथ ऑफ द पैसेज 400 पहले थी, अभी आप 200 to 450 लेकर चलो। यहां पर शॉर्टर और लेंदी पैसेजेस हो सकते हैं। जैसे क्लैट में ना एक पर्टिकुलर पैटर्न फ्लो होता है बेटे, जैसे मैं बोलूं कि पहले 4 पैसेजेस से 24 क्वेश्चन है, अब 5 पैसेज से 24 क्वेश्चन है। यहां पर कोई पैटर्न नहीं है, एक पैसेज से 6 क्वेश्चन, 1 से 4 क्वेश्चन, 1 से 10 क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हेवी रीजनिंग, ये टेक्निकल एक्यूरेसी। यहां पर सोर्सेज यूजुअली एडिटोरियल, करंट अफेयर्स देख लिए, यहां पर मिक्स सोर्सेज है। नेक्स्ट, ये 20% ऑफ द पैसेज वेटेज है, इधर 33। यहां पर यू नीड टू फोकस ऑन स्पीड रीडिंग, इन्फ्रेंस, टोन एंड स्ट्रक्चर एंड रिकॉग्निशन। इन एलिट यू नीड टू फोकस ऑन ग्रामर में आपकी कमांड क्या है, क्या वोकैबुलरी है, क्या प्रिसीजन है। क्लैट में एडिटोरियल्स पढ़ो, जो रीडिंग लिस्ट दी गई है वो देखो, आरसी ड्रिल्स करो जो मैं आपको कराऊंगी, और लॉजिक समझो। यहां पर ग्रामर जरूरी है, इडियम जरूरी है, सेंटेंस भी जरूरी है, पैरा जंबल्स भी। यहां पर गलतियां क्या करते हैं बच्चे, टोन नहीं समझते हैं, आर्ग्यूमेंट मिस इंटरप्रेट करते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यहां पर ग्रामर और वोकैबुलरी मिस्टेक ज्यादा है। आई होप ये समझ में आया है सबको, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अगर आपको यहां पर कोई भी डाउट है तो जल्दी बताइए। इज एवरीथिंग क्लियर बच्चा पाठी? नाउ talking about the strategy that you need to follow. You people need to follow question first technique where you read the question first, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि आपको पैसेज में किस चीज पर ध्यान देना है। देन रीड द पैसेज। अब ये रीडिंग द पैसेज मैं आपको बताऊंगी कि क्या डूज है रीडिंग के, क्या डोंट्स है, ये सब कवर किया जाएगा। इसके अलावा क्या क्या डायमेंशंस है, किस किस चीजों पर फोकस करना है, ये भी आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चंस को स्ट्रैटेजिकली आंसर करो।
ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन फॉलो करो. आई एम गोइंग टू टीच यू दिस ऑल्सो इन द क्लासेस, ताकि आप एलिमिनेट करके सही जवाब तक पहुंचे. एंड देन टाइम मैनेजमेंट है लास्ट स्किल. तो ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी. प्लीज डू नॉट गेट वरीड. ओके, चलिए, आई एम गोइंग टू टेक सम डाउट्स एंड देन आई एम गोइंग टू रैप इट अप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैटीग? थक जाना. मैम हिंदी मीडियम से हूं, इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करें? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, फॉलो द स्ट्रैटेजी ऑफ आर.के. नारायण बुक दैट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ. आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, बहुत हेजिटेशन हो रही है बच्चों को, अभी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, but you people are going to do well. Trust me on this, bacha party. We are going to practice everything in the classes. Everything. ठीक है? I just want you people to focus on your homework as of now. All right? All those students who haven't started reading, please do that. It's very, very important. Crucial. Okay? मैम आप समझ गई हैं, 11 से हूँ हिंदी मीडियम. थैंक यू विवेक. भारती, बच्चे पता है लाइफ में ना, हमें ना हर पॉइंट पर आकर ऐसा फील होगा, आई थिंक आई एम नॉट डूइंग गुड इनफ, या मैंने ये छोड़ दिया है, ये छोड़ दिया है. उस टाइम पर ना यू नीड टू सिट क्वाइटली एंड इंट्रोस्पेक्ट. मैं क्या कर रही हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, और देखो कितना अलाइनमेंट है. अगर कोई आपकी तरफ से कमी हो रही है तो मेक श्योर आप उसको पूरा करें. ठीक है? मैम आई स्कोर अराउंड 15, इसको इंक्रीज कैसे करूं? हिमांशी प्लीज एनालाइज. देखो कहाँ गलतियां हो रही हैं बेटे. एनालाइज का मतलब है अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, कंसेप्ट क्लैरिटी, लैंग्वेज, एलिमिनेशन, क्या दिक्कत है. कोई क्वेश्चन सही हुआ है तो गेस वर्क था या शॉर्ट था, छोड़ दिया है तो टाइम कम था या आता नहीं था, एंड देन वर्क ऑन दोज प्रॉब्लम्स. दे विल बी हर्श, डोंट वरी. I can understand Ayush, please analyze and rectify. हो जाएगा माही, don't worry. चलिए, अभी के लिए बच्चा पार्टी, प्लीज राइट योर होमवर्क. जिन भी बच्चों को लगता है उनकी इंग्लिश कमजोर है, आर.के. नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड्स पढ़ना शुरू करो, चैप्टर बाय चैप्टर. इसके साथ साथ पॉकेट डायरी बनाओ, उसमें डेली बेसिस पर 2 से 3 वर्ड्स लिखो, उसके सिनोनिम लिखो, एंटोनिम लिखो, सेंटेंस बनाओ और इसको रिव्यू करो. ठीक है? इसके अलावा जिसको लगता है उनकी इंग्लिश ठीक ठाक है, न्यूज़पेपर से पढ़ना शुरू करो. इसका एनालिसिस भी देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस का अंकिता मैम करा रही है और द हिंदू का मनु सर. आई होप ये क्लियर है. बच्चा पार्टी, please do not be worried about anything. The syllabus is going to be completed in our batches for sure. We are not going to leave anything. We are going to practice everything. Okay? Now on this note, I'm looking forward to wrapping it up. Please make sure that you people are doing your homework on time. Okay? चलिए, मिलते हैं जल्द ही ना नेक्स्ट